Hello students, class 9th, subject biology, chapter 1, the fundamental unit of life. Students, in the previous video, you learn about the functional region of cells, about plasma membrane, cell membrane, and how the material move in and out of the cell. Today we learn about cell wall. Cell wall, बच्चों, it is the outer covering of plant cell. Animal cell में cell wall नहीं होता है. Plant cell में जो outer covering होता है वो क्या होता है? Animal cell, है ना? Under the animal cell there is also cell membrane is present. The some features of cell wall. It is rigid and non-living. ये एक rigid होता है, non-living होता है. It is freely permeable and mainly composed of, ये mainly किससे बना होता है? Cellulose. Okay. Function of cell wall: provide structural strength to the plant cell, give definite shape to the plant cell, protect from pathogens and mechanical injury. Okay. This is about plant cell. Now the second functional region of cell, it is nucleus. Very important, because simply हम कहें तो nucleus is the brain of cell. इसको हम brain of cell भी कह सकते हैं. Brain means it control all the activities of the cell. Nucleus, earlier you will be see, it is discovered by Robert Brown. There are a figure. You are looking at a structure of nucleus. It's having mainly 4 parts. सबसे बाहर आपको जो दिख रहा है इसमें outer membrane. This outer membrane is a nuclear membrane which separate the nucleus from cytoplasm. Next, nuclear pore. The small pores in the nuclear membrane we are watching. These are calling of nuclear pores. It can be allow entry and exit of material from cytoplasm to the nucleus. Number 3, dark dense mass. You are looking in the boat of nucleus. ये जो dark dense mass हमें दिख रहा है, it is nucleoplasm. What it is calling of? Sorry, it is calling of nucleolus. क्या कहते हैं इसको? Nucleolus. तो दिस डार्क मास न्यूक्लियोलस, इट्स कंटेन आरएनए, इसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एंड दैट वोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. ओके. नेक्स्ट, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट. ये डॉट 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 हमें दिखाई दे रहा है ना, अ फ्लूइड, है ना, दैट इज द न्यूक्लियर फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्म. इन न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर फ्लूइड we are looking the thread like structures. ये हमको धागे धागे दिख रहे हैं, thread like structures. These are said to be chromatin. Chromatin materials are very important part of the nucleus, because this chromatin material during the cell divisions that are comes into the pairs and are what said to be the chromosomes. इनको हम क्या कहते हैं? chromosomes. These are the fixed number in all the living kinds. The chromosomes are made up of proteins and DNA. ये जो chromosomes होते हैं ये DNA and protein से बने होते हैं, and that are having the very important function because they bring the hereditary characters from one generation to another. हम देखते हैं कि एक डॉग है वो डॉग प्रोड्यूस करता है, कैट है कैट प्रोड्यूस करता है. या हेरिडिटी फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनको वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना, कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम. दैट क्रोमोसोम्स हैविंग अ फंक्शनल यूनिट, है ना, विच इज ट्रांसफर द हेरिडिटी फीचर्स, उनको हम कहते हैं जीन्स. व्हाट इट इज कॉलिंग ऑफ? जीन्स. तो स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, अभी आपको बताया मैंने कि ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसके मेनली जो 4 पार्ट्स थे, क्रोमेटिन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. Chromatin, that's during cell division
it is comes in pair in what form? Chromosomes that are made up of DNA and proteins, and the functional unit of chromosome is genes. They transfer the inheritance or hereditary traits from one generation to other. Okay. The next one, it is cytoplasm. तीसरा जो थर्ड फंक्शनल रीजन सेल का होता है साइटोप्लाज्म, दैट इज अ फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल. न्यूक्लियस के बाहर सेल में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी फ्लूइड सेल के अंदर हम देख रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर दिस सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस? फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में हम इसको ER भी लिख सकते हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है. इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में हम SER लिख सकते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो राइबोसोम्स नॉट अटैच टू द सरफेस, नाम उसका हमने क्या बताया अभी आपको? स्मूथ. द सरफेस इज स्मूथ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम because there is a not attachment of any particles of ribosomes. While RER rough endoplasmic reticulum, अब इसका surface rough होता है because the ribosomes are attached to it. This endoplasmic reticulum performs some functions. ठीक है ना? The functions are number one, that ER gives mechanical support to the cell. Cells को mechanical support provide करता है. RER synthesis protein, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी आपको मैंने बताया इनके ऊपर क्या अटैचमेंट होते हैं? राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस. SER दैट आर सिंथेसिस लिपिड्स, है ना? और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन. ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ओके. नाउ इट सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, especially protein. The next cell organelle is Golgi apparatus. एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. स्पेशली दिस ऑर्गन या दिस ऑर्गेनेल इज द स्टोरेज. इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स. और नंबर टू, दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. सेल्स में जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके फॉर्मेशंस कौन करते हैं? तो इट इज गोल्गी apparatus. The next it is mitochondria. Next it is mitochondria. Okay, the powerhouse of the cell. Mitochondria को हम क्या कहते हैं? Powerhouse of the cell. अब powerhouse, powerhouse से मीनिंग क्या होता है? हम सिंपली कहें कि जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक क्या काम करता है? पावर हाउस का. ठीक है ना? पावर हाउस आप स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए. माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग देयर ऑन DNA मटेरियल्स. इट इज द बोट ऑफ डबल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स. द इनर मेम्ब्रेन यू आर लुकिंग, इट इज फोल्डेड. ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है वो क्या है? फोल्डेड. And it is said to be the cristae. Inside that is about of we are getting the ribosomes and DNA molecules are present. The important functions of the mitochondria. Number one, the site of cellular respiration. जो cellular respiration होता है बॉडी में उसकी साइट क्या होती है? Mitochondria. It provide energy in the form of ATP. After the respiration, अब रेस्पिरेशन मीन्स हम जानते हैं क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी. और ये एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रिलीज होती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंड दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके. नेक्स्ट इट इज लाइसोसोम. अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइसोसोम्स दैट आर द बोट ऑफ कैसे फॉर्म्ड होते हैं? दैट इज बाय द गोल्गी बॉडीज. दे आर ऑल्सो सेड टू बी सुसाइडल बैग ऑफ सेल. सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना? अब सुसाइडल बैग वाई? सिंपली हम कहें तो दिस लाइसोसोम्स
that can be destroy any foreign material. Foreign से meaning या विदेश नहीं है, foreign से meaning outside the body like bacteria, virus, है ना, उनसे उनको ये क्या करते हैं, destroy करते हैं. Number 2, it removes dead and worn out cells, है ना, organelles by the digesting them. अब एक्चुअली बच्चों क्या होता है, लाइसोसोम्स जो होता है, this has their own powerful digestive enzymes, and with during the starvation of cell it can digest their own digestive enzymes and burst by what it is, suicidal bag of cell. Next it is plastids. अब plastids students is only found in plant cell. ये सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं. टाइप्स की बात करें हम तो इट इज 2 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, है ना, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड स्टार्च, ऑयल्स एटसेट्रा. नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट, these are the colored plastics, they provide color to the fruits and flowers. ग्रीन कलर का आपने स्पेशल नाम सुना है, इट इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हेल्प इन photosynthesis by what plant synthesis their food. Now the structure of plastid you are looking, that is the outer and inner membrane, it having the both of grana and it is the stroma. ग्रेना से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एंड दैट हेल्प इन द बोथ ऑफ सिंथेसिस फूड बाय ट्रैपिंग द सनलाइट. ओके, द लास्ट वी आर लुकिंग अबाउट वैक्यूल्स. दिस इज द स्टोरेज sacks for solid liquid content. They are the larger in plant cell, है ना, in animal cell they are very small or absent. They provide turgidity to the cell. That's all. Thanks. I hope you learned chapter very nicely. Thank you.